الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مضامین۔ نساء کے معنی ہے عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ میں جس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، اس معاشرے کی تربیت اور اس کے اخلاقی قدروں کے تحفظ کے لیے احکام کا ایک حصہ سورۃ البقرہ میں بھی مذکور ہے۔ سورت کے آغاز میں عالی قوانین کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے، کیونکہ جنگ احد کے دوران میں شہید ہونے والوں کے پسماندگان کے لیے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے تھے، مثلاً بیواؤں، یتیموں اور بیویوں کے حقوق، تقسیم میراث وغیرہ۔ ایک امن پسند اور صالح معاشرے کے لیے جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس صورت میں مذکور ہیں۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی فتح کے آثار نمایاں ہو گئے تو بعض صحابہ اکرام نے گھاٹی کو قبل از وقت چھوڑ دیا، جس کے باعث مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وجہ سے کفار مکہ اور مدینہ کے گرد و پیش میں بسنے والے یہودیوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بلکہ انہیں مٹانے کے لیے ہر روز نئے نئے پروگرام بناتے، اور ان کی سازشوں کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات بھی کیے اور صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس صورت کی ابتدا تقوی کی ہدایت سے ہوتی ہے، کیونکہ تقوی احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلا زینہ ہے جس پر انسانیت کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہاں ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی زوج یعنی ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ والارحام یعنی رشتے ناتوں کو توڑنے سے بھی بچو، اس سے مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں، اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتے ناتوں کو توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے، جسے قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء کے آغاز میں عورتوں کے علاوہ یتیموں کے حقوق کے متعلق بھی تفصیلی طور پر احکامات آئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور نہ اپنے مال اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڈمٹ کر کے اس کو ہڑپ کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں مال و دولت کی لالچ میں لوگ یتیم بچوں اور خصوصاً یتیم رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں یا پھر اس میں رد و بدل کر ڈالتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 اور 3 4 کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح یتیم بچوں کے بالغ ہونے اور ان کی عقل و دانش کو پرکھ لینے کے بعد ان کی دولت ان کے حوالے کر دینے کو کہا گیا ہے، اور اس کو ضائع نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
इन यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं, तो अगर तुम उनके अंदर समझ बूझ पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। यानी यतीमों को छोटी मोटी जिम्मेदारियां देकर उनको जांचते रहो कि उनमें कितनी सलाहियत और समझ बूझ मौजूद है। जब वो इस काबिल हो जाएं कि जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभा सके तो फिर उनके माल को उनके सुपुर्द कर दो। याद रखो, अगर ऐसा ना करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरह यतीमों का माल खाने का वबाल के बारे में इरशाद बारी ताला है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा, कि जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं और वह अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब दोज़ख में डाले जाएंगे। क्योंकि इस्लाम से कबल एक बड़ा जुल्म ये भी रखा जाता था कि औरतों और छोटे बच्चों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता था और सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के काबिल होते सारा माल के वारिस करार पाते। इसलिए इरशाद हुआ, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूदा। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतें और बच्चे और बच्चियां अपने वालिदैन और अकारिब के माल में हिस्सेदार होंगे, उन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। ताहम ये अलग बात है कि लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से से निस्फ होगा। और इसी तरह ये बात औरतों पर जुल्म नहीं है और न ही इनके खिलाफ है, बल्कि इस्लाम का यह कानून मीरास अदल और इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है, क्योंकि औरत को इस्लाम ने माश की जिम्मेदारियों से फारिग रखा है और मर्द को इसका कफ़ील बनाया है। अलावा अज़ीम औरत के पास महर की सूरत में भी माल आता है जो एक मर्द ही उसे अदा करता है। इस लिहाज से औरत के मुकाबले में मर्द पर कई गुना ज़्यादा माली जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसलिए अगर औरत का हिस्सा निफ्स के बजाय मर्द के बराबर होता तो ये मर्द पर जुल्म होता, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया, क्योंकि वो आदल भी है और हकीम भी है। इसी तरह माशरती अहकामात के बाद अल्लाह ताला के दो हकूक़ का जिक्र किया गया है, यानी अदायगी नमाज और तौहीद का इकरार या शिर्क से बचाओ। कुरान पाक में बार बार नमाज पर जोर दिया गया है, इसकी बड़ी ताकीद की गई है। सूरत निसा में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक इन अल्फाज को, यानी जो मुंह से कहो, समझने ना लगो, नमाज के पास ना जाओ। मज़ीद इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून फवैलुल लिलमुसल्लीन। ऐसे नमाजियों के लिए तबाही है जो अपनी नमाजों की तरफ से गाफिल रहते हैं। शिर्क इंतहाई नापसंदीदा अमल है। शिर्क एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, कि अल्लाह ताला इस गुनाह को ना बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए। सूरत निसा की आयत नंबर 105 में नुज़ूल कुरान का मकसद बयान किया गया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह, कि पैगंबर हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हदायत के मुताबिक लोगों के मुकद्दमात का फैसला करो। सूरत निसा की आयत नंबर 114 में है, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। नजवा यानी सरगोशी से मुराद वो बातें हैं जो मुनाफिकीन आपस में मुसलमानों के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ किया करते थे, और सदक़ात से मुराद खैरात, मारूफ यानी हर किस्म की नेकी को शामिल कर लेना, और इस्लाह बैनन नास के बारे में मशवरे खैर पर मबनी है। यानी अगर खुलूस नीयत के साथ बड़े से बड़े अमल भी ना किया जाए तो उसका जो है अजर सवाब ज़ाया हो जाएगा, और साथ ही साथ उसके लिए वो चीज़ वबाल जान भी बन जाएगा। हदीस में अमाल मज़कूरा की बड़ी ही फजीलत आई है। अल्लाह ताला की राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी बहुत पहाड़ जितना होगा। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और बाहम
नाराज़ दिखकर लोगों के दरमियान सुलह करा देना भी बहुत बड़ा अमल है। और एक हदीस में इसे नफली रोज़ों और नफली नमाज़ों और नफली सदक़ात और खैरात से भी अफजल बतलाया गया है। सूरह निसा की आयत नंबर 125 में इरशाद बारी ताला है, वमन अहसनु दीन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। कि भाई एतबार दीन के इससे अच्छा दीन कौन है जो अपने को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी नेकोकार, साथ ही यकसुई वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कर रहा हो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया है। यहाँ कामयाबी का एक मियार और इसका एक नमूना बयान किया जा रहा है। मियार यह है कि अपने आप को अल्लाह के सबूत कर दे, मोहसिन बन जाए और मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करे। और नमूना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। खलील के मानी कि जिसके दिन में अल्लाह ताला की मोहब्बत इस तरह रास हो जाए कि किसी और के लिए इसमें जगह ना रहे। सूरह निसा में इरशाद हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति व शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन व इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। यानी ए ईमान वालों, अदल और इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी अल्लाह ही के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों के। वो शख्स अगर अमीर हो तो और अगर फ़कीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए कि तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना। और अगर तुमने कच बयानी या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अदल इंसाफ पर कायम करने और हक़ के मुताबिक गवाही देने की ताकीद फरमा रहे हैं, चाहे इसकी वजह से उन्हें या उनके वालिदैन या रिश्तेदारों को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। और किसी मालदार की मालदारी की वजह से रियायत की जाए, ना किसी फ़कीर के फ़क्र के अंदेशा तुम्हें सच्ची बात कहने से रोके, बल्कि अल्लाह उन दोनों से तुम्हारे ज़्यादा करीब और मुक़द्दम है। इस आयत में अदल इंसाफ की ताकीद और उसके लिए जिन बातों की ज़रूरत है इसका अहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। मसलन कि हर हाल में अदल करो, इससे इनहराफ ना करो और सिर्फ अल्लाह की रज़ा तुम्हारे पेश नज़र हो, क्योंकि इसी सूरत में तुम तब्दीली से परहेज़ करोगे और तुम्हारा फ़ैसला अदल की पर मबनी होगा। अदल इंसाफ की ज़द अगर तुम पर या तुम्हारे वालिदैन पर या दीगर करीबी रिश्तेदारों पर पड़े तब भी तुम इसकी परवाह मत करो और अपनी और उनकी रियायत के मुकाबले में अदल के तकाज़ों को अहमियत दो। और इसी तरह फ़ैसले में अपनी ख्वाहिश नफ्स या किसी की दुश्मनी आड़े नहीं आनी चाहिए, बल्कि इन सब को नज़रअंदाज करके बेलाग अदल करो। सूरह निसा की आयत नंबर 174 में इरशाद हुआ, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कि ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक सनद और दलील आ पहुँची है और हमने तुम्हारी जानब वाज़िह और साफ नूर उतारा है। यानी इस नूर से मुराद कुरान करीम है जो कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में हदायत का नूर है। बस इसके मुताबिक ईमान लाने वाले अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी रहमत के मुस्तहिक होंगे। आयत नंबर 176 में यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। कलाला इस मरने वाले को कहा जाता है जिसका बाप हो ना बेटा। यहाँ फिर इसकी मिरास का जिक्र हो रहा है। यानी बास लोगों ने कलाला इस शख्स को करार दिया है जिसका सिर्फ बेटा ना हो, यानी बाप मौजूद हो, लेकिन ये सही नहीं। कलाला की पहली तारीफ़ ही सही है क्योंकि बाप की मौजूदगी में बहन सिरे से वारिस ही नहीं होती, बाप के हक़ में हाजत बन जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर उसकी बहन हो तो वो इस निस्फ माल की वारिस होगी, जिससे साफ मालूम होता है कि कलाला वो है कि बेटे के साथ जिसका बाप भी ना हो। यूं बेटे की नफ़ी तो
नस्ब से साबित है और बाप की नफ़ी अशारतुन नस्ब से साबित हो जाती है। यानी बेटे से मुराद बेटा और पोता दोनों, इस तरह बहन से मुराद सखी बहन या अलाती बाप शरीक बहन है। और कलाला शख्स की 2 या 2 से ज़ायद बहनें हों तो उन्हें कुल माल का 2/3 हिस्सा मिलेगा। यस्तफ्तूनका यानी वो तुमसे फतवा पूछते हैं, किसके बारे में? कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, यानी कह दो कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मरे और इसकी कोई औलाद ना हो और इसके एक बहन हो तो इसके लिए इसके तरके का निस्फ है और वो मर्द इस बहन का वारिस होगा। और अगर इस बहन की कोई औलाद ना हो और अगर बहनें 2 हों तो उनके लिए इसके तरके का 2/3 होगा। और अगर कई भाई बहन मर्द औरतें हों तो एक मर्द के लिए 2 औरतों के हिस्सा 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। यहाँ ये वजाहत से बयान कर दिया गया है कि कलाला इस मरने वाले को कहा जाता है कि जिसके ना वालिदैन में से कोई हो और ना ही औलाद में सिर्फ बहन और भाई वगैरह हों, और इन बहन भाइयों में तरका की तकसीम की वजाहत यहाँ फरमा दी गई है। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह तुम्हारे लिए इसकी वजाहत करता है कि तुम गुमराही में ना पड़ जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, इस पर अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका